حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ جو دوسرے تجار تھے ان کے باغیچوں میں، ان کے باغ میں انگور کی فصلیں سال میں ایک مرتبہ آیا کرتی تھی، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا کہ میرے باغ میں سال میں دو مرتبہ جو ہے انگور کی فصلیں آیا کرتی تھی۔ اور جہاں تک اولاد کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی کی دعا کی وجہ سے ان کی اولاد میں اتنی برکت دی کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے آخری ایام میں، اپنی آخری عمر میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنی اولاد میں 106 بچوں کو دیکھ لیا۔ 106 بچے یعنی بیٹے، بیٹیاں، پوتے، پوتیاں، پرپوتے، پرپوتیاں، نواسا، نواسیاں، پرنواسی، پرنواسیاں، اس طرح سے جو ہے 106 اولاد کو جو ہے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے میں نے دیکھ لیے۔ تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالی کی بات یعنی قرآن مجید ہے، اور سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میری آواز کو سننے والی پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ جو سورۃ البقرہ کے اندر موجود ہے آپ حضرات کے روبرو تلاوت کی گئی۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے پیغمبر، میرے بندے جب تم سے سوال کریں کہ میں کہاں ہوں تو تم ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں۔ اور قرآن مجید کی ایک اور آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور تم میں سے جب بھی کوئی دعائیں مانگتا ہے، سوال کرتا ہے تو میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، ان کی حاجتوں کو پورا کرتا ہوں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ میری بات کو مانے، مجھ پر ایمان لائے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا چاہیے۔ دعا انسان کی ضرورت بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ انسان جب دعا کرتا ہے تو دعا کر کے جہاں وہ اپنی ضرورتوں کا سوال کرتا ہے، اپنی حاجتیں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش کرتا ہے، اپنی مجبوریاں اللہ رب العالمین کے سامنے رکھتا ہے، وہیں وہ اللہ رب العالمین کی ایک ایسی عبادت کو انجام دے رہا ہوتا ہے کہ جس کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل عبادہ الدعاء، کہ دعا یہ افضل ترین عبادت ہے۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا یہ عبادت کا مغز ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی سے مانگتے رہنا چاہیے، اللہ کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم اپنی حاجتیں اللہ رب العالمین کے سامنے نہیں رکھتے، اللہ رب العالمین سے دعائیں نہیں کرتے، تو اللہ رب العالمین اس بات پر غصہ ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے۔ کتب احادیث کا جب ہم اور آپ مطالعہ کرتے ہیں تو میرے اسلامی بھائیوں، ایسے بے شمار واقعات ہمارے سامنے آئیں گے کہ جہاں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشانیوں میں مبتلا ہوئے، الجھنوں میں گرفتار ہوئے، مختلف قسم کی بیماریوں نے انہیں جکڑ لیا۔ ایسے موقع پر وہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ سے درخواست کرتے کہ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم تکلیفوں میں ہیں، ہم مصیبتوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، الجھنوں میں ہیں،
अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी उलझनों को सुनते, उनकी परेशानियों को सुनते और फिर जो है उनके हक में दुआएं किया करते थे। और फिर देखते ही देखते दुआएं रंग ला लिया करती थीं और सहाबा किराम अपनी जिंदगी में ही उसके असरात देख लिया करते थे। मेरे इस्लामी भाइयों, आज हम और आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपनी हाजतों को रखते हैं, अपनी ज़रूरतों को रखते हैं, हम परेशान हैं, अपनी परेशानी को अल्लाह तबारक व तआला के सामने रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद आज हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। उन दुआओं का असर हमें अपनी ज़िंदगी में देखने को नहीं मिल रहा। आखिर इसकी क्या वजह है? क्या कभी हमने इस पर गौर किया? क्या कभी इसके बारे में हमने सोचा? याद रखिए मेरे इस्लामी भाइयों, आज दुआ की कबूलियत के जो शराइत हैं, उन शराइत का फुकदान हमारे और आपके अंदर पाया जा रहा है। हम जो खाते हैं हराम खा रहे हैं, हम जो पहनते हैं हराम पहन रहे हैं, और हमारे जेब में, हमारे घरों में जो रिज़्क आ रहा है वह हराम कमाई के जरिए से आ रहा है। तो कैसे हमारी दुआओं को अल्लाह तबारक व तआला कबूल करेगा? प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए आदाब और शराइत को हमने जो है एक तरफ रख दिया है, कैसे फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को कबूल करेगा? और जाहिर सी बात है मेरे इस्लामी भाइयों, जब दुआएं कबूल नहीं होती, जब ज़रूरतें पूरी नहीं होती, जो कमज़ोर ईमान वाले होते हैं उनका अल्लाह पर जो यकीन होता है, अल्लाह पर जो ईमान होता है, अल्लाह पर जो भरोसा होता है, सिर्फ दुआओं के कबूल ना होने की वजह से उनका ईमान कमज़ोर पड़ जाता है, उनका यकीन कमज़ोर पड़ जाता है, उनका भरोसा कमजोर पड़ जाता है, और वो ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि दुआ ये तो बस एक रस्म है, एक रिवायत है। हम अपनी ज़रूरतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रख रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को नहीं सुन रहा, हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहा। तो मेरे इस्लामी भाइयों, हमें अपना ईमान, हमें अपना अकीदा, हमें अपना भरोसा मजबूत रखना है। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात पर अमल करते हुए अपने हाथ को, अपने दामन को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने फैलाना है। तो वैसे ही हमारी दुआएं कबूल होंगी जिस तरह से अल्लाह के नबी की दुआ कबूल होती थी, सहाबा किराम की दुआएं कबूल होती थी, उनके बाद के जो अदवार हैं उन अदवार में दुआएं कबूल होती थी। और मौजूदा वक्त में भी बहुत से अल्लाह वाले ऐसे हैं कि जिनकी दुआएं आज भी कबूल होती हैं। लिहाजा आज के इस खुतबा जुमा में दुआ की कबूलियत के वाक़यात आप हजरात के सामने रखूंगा, इस उम्मीद के साथ कि इस वाक़यात को, इन वाक़यात को सुनने के बाद हमारा ईमान मजबूत होगा, हमारा अकीदा मजबूत होगा, और हम ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात सुनने वाली है, कबूल करने वाली है। मेरे इस्लामी भाइयों, बुखारी की हदीस, हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु, ये प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते सहाबा, इनके साथ क्या मसला पेश आया? इनके साथ ये मसला पेश आया कि इनके वालिद मोहतरम शहीद हो गए, और इनके वालिद मोहतरम ने एक यहूदी से कर्ज ले रखा था 30 वस्क खजूर का। 30 वस्क खजूर उन्होंने जो है एक यहूदी से ले रखी थी। एक वस्क 60 सा का होता है और एक सा 2.5 किलोग्राम का होता है। इस तरह से 30 वस्क 4,500 किलोग्राम के बराबर होता है। तो 4,500 किलोग्राम के बराबर खजूरें हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिदे मोहतरम ने एक यहूदी से कर्ज के तौर पर ले रखी थी। उनके वालिदे मोहतरम शहीद हो गए। इस कर्ज को अदा करने की जिम्मेदारी हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर आ गई। जब ये शहीद हो गए, वो यहूदी हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आता है, जबरदस्ती करने लगता है और उनको सताने लगता है। कहता है कि मुझे अभी कर्ज चाहिए, इसी वक्त कर्ज चाहिए, फौरन कर्ज चाहिए। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु उसे समझाते हैं, कहते हैं कि देखो थोड़ी सी मोहलत मुझे दे दो, थोड़ी सी मोहलत मुझे दे दो, अभी तो मेरा जख्म हरा भरा है, मेरे वालिदे मोहतरम इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, तुम थोड़ी सी मोहलत अगर मुझे दे दोगे मैं तुम्हारा पूरा का पूरा कर्ज अदा कर
کر دوں گا۔ اس یہودی نے انکار کیا، کہا نہیں، مجھے ابھی اور اسی وقت مجھے میرا قرض واپس چاہیے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو جاتے ہیں، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، یہودی مجھے پریشان کر رہا ہے، آپ اس یہودی سے درخواست کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کی بات کو مان کر وہ مجھے تھوڑی بہت مہلت دے دے گا۔ اللہ کے نبی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی درخواست کو قبول کر کے اس یہودی کے پاس جاتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں، لیکن یہودی صاف انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے نہیں، مجھے ابھی اور اسی وقت جو ہے قرض چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دیکھو اگر تم ماننے کو تیار نہیں ہو تو میری ایک بات مانو، حضرت جابر کا جو باغیچہ ہے اس میں جتنی بھی کھجوریں لگی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری کھجوریں تم توڑ لو اور باقی جو بچا ہوا قرض ہے اس کو تم معاف کر دو۔ میرے اسلامی بھائیوں، عرب لوگ جو ہیں یہ بڑے ماہر ہوتے ہیں، بڑے ذہین ہوتے ہیں، باغ کو دیکھ کر، فصل کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ اس باغ میں کتنی کھجوریں ہوں گی۔ یہودی کو اندازہ تھا کہ 30 وسق سے جو ہے کم کھجوریں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے جو ہے باغیچے میں ہیں۔ وہ انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے نہیں، مجھے تو ابھی میرا پورا کا پورا قرض چاہیے۔ بہرحال اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے باغیچے کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کا پورا راؤنڈ لگاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات پر اللہ کے نبی کا جو یقین تھا، دعا کرنے کے بعد اللہ کے نبی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں اے جابر، جاؤ اپنی فصلوں کو کاٹو اور اس یہودی کا قرض ادا کر دو۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، یہ باغیچہ جہاں 30 وسق کی پیداوار ناممکن نظر آ رہی تھی، پتہ نہیں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کون سی دعا اللہ تبارک و تعالی سے مانگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب میں نے فصل کو کاٹنا شروع کر دیا تو 30 وسق کھجوریں اس یہودی کو دے دی اور 17 وسق یعنی 2500 کے قریب کھجوریں جو ہیں بچ گئیں جو میرے کام میں آئیں۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی اور اللہ رب العالمین نے جو ہے پیارے نبی کی دعا کو قبول کیا۔ تو ایسا یقین، ایسا بھروسہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے جو یقین، جو بھروسہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا۔ الادب المفرد نامی کتاب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ جب یہ اسلام میں داخل ہوئے تو ان کی جو ماں تھی ان سے یہ بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے اور ان کی یہ خواہش تھی کہ جس طرح سے میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہوں ایسے ہی میری والدہ محترمہ بھی جو ہے اسلام میں داخل ہو جائے، اسلام سے محبت کرنے لگے۔ اس کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی ماں پر دن رات محنت کیا کرتے تھے، اللہ رسول کی باتیں بتایا کرتے تھے، شرک سے نفرت دلایا کرتے تھے۔ ایک دن ہوتا کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی والدہ محترمہ کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اللہ کے نبی کے بارے میں بتا رہے تھے۔ بات میں ان کی والدہ محترمہ نے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی، اللہ کے نبی کو برا بھلا کہہ دیا۔ یہ سننا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بے چین ہو گئے، روتے ہوئے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا اے اللہ کے رسول، آپ میری والدہ محترمہ کے لیے دعا کر دیجئے، میں دعا کی درخواست لے کر آپ کے پاس آیا ہوں کہ ان کا دل جو ہے اسلام کے لیے نرم پڑ جائے، وہ اسلام میں داخل
हो जाएं। अपने चहीते सहाबा, जलीलुल कद्र सहाबा की दरखास्त को अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल किया और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, ए अल्लाह, अबू हुरैरा की वालिदा को तू जो है अबू हुरैरा की वालिदा के दिल में इस्लाम के लिए मोहब्बत पैदा कर दे और उसको इस्लाम में दाखिल कर दे। इधर प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, मैं अपने घर पहुंचा, क्या देखता हूं, दरवाजा लगा हुआ है, दरवाजे में दस्तक दी, अंदर से वालिदाए मोहतरमा की आवाज आई, कौन है? मैंने कहा अबू हुरैरा। मां कहती है, रुक जाओ, मैं गुस्ल कर रही हूं, गुस्ल करने के बाद दरवाजा खोलूंगी। गुस्ल कर से फारिग होने के बाद दरवाजा खोलती हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु कुछ कहें इससे पहले ही उनकी वालिदाए मोहतरमा कहती हैं, ऐ अबू हुरैरा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ये सुनना था। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु जो है खुशी के मारे चीख उठे और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फौरन रोते हुए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गए। बस फर्क इतना है कि पहली मर्तबा जब रोते हुए गए थे तो आंखों से आंसू गम वाले निकल रहे थे और अभी जो रोते हुए गए तो आंखों से आंसू खुशी वाले निकल रहे थे। अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर होते हैं और अल्लाह के नबी को सारा माजरा, सारी कैफियत बताते हैं और फिर कहते हैं, ए अल्लाह के नबी, आप मेरे लिए और मेरी वालिदाए मोहतरमा के लिए और दुआ कर दीजिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, अबू हुरैरा और उनकी मां के ताल्लुक से लोगों के दिलों में तू मोहब्बत पैदा कर दे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, इसी दुआ का असर है कि इसके बाद मैंने देखा कि हर इंसान मुझसे मोहब्बत करने लगा था। और अल्लाह की कसम मेरे इस्लामी भाइयों, हम अपने दिलों का जायजा लें, हम अपने दिलों के गोशे में झांक करके देखें। हमारे दिलों में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के ताल्लुक से मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई है, लेकिन जब बात हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु की आती है तो उसका एक अलग ही गोशा हम और आप महसूस करते हैं। एक रिवायत में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी की दुआ के असर से मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिमीन हजरात भी जो है मुझसे मोहब्बत करने लगे। मेरे इस्लामी भाइयों, पता चला कि लोगों को हिदायत के लिए जहां हम समझाते हैं, वाज़ो नसीहत करते हैं, उनके सामने दलाइल पेश करते हैं, वहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन से उनकी हिदायत के लिए दुआ भी करना चाहिए। सिर्फ मेहनत पर ही इक्तिफा नहीं करना चाहिए, उनके हक में दुआ भी करना चाहिए, उनके रुश्द व हिदायत के लिए। तो अल्लाह के नबी ने दुआएं की और उनकी दुआओं को कबूल किया गया। इसी तरह से मुस्नद अहमद के अंदर एक और वाक़या है, अल्लामा अलबानी ने इस जो है वाक़ये को सही करार दिया है। हजरत उस्मान बिन हुनैफ रज़ी अल्लाहु अन्हु, ये नाबीना सहाबी थे, इनको आंखों से नजर नहीं आता था। अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, अल्लाह के रसूल, मुझे कुछ दिखता नहीं है, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मैं भी जो है दूसरों की तरह देखने लगूं। अल्लाह के नबी ने दो ऑप्शन उनके सामने रखे, इन शिअत दाउतु लका व इन शिअत सबरत व हुवा खैरुल लका, कि ऐ उस्मान बिन हुनैफ, देखो तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे लिए दुआ कर लूंगा, और दूसरा ऑप्शन यह है कि तुम अगर सब्र करोगे तो यह तुम्हारे लिए बेहतर है। हजरत उस्मान बिन हुनैफ कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, आप तो दुआ कर दीजिए, मैं चाहता हूं कि मैं दूसरों की तरह लोगों को देख सकूं और दुनिया का जायजा ले सकूं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें एक तरीका बताते हैं, कहते हैं, जाओ जाकर के वुजू करो, 2 रकात नमाज पढ़ो और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी दुआ को कबूल करेगा। वो ऐसा ही करते हैं और उनकी आंखों की बीनाई वापस आ जाती है। क्या चीज थी इनके अंदर? यकीन था, भरोसा था, उनका अकीदा मजबूत था, उनका ईमान मजबूत था। अल्लाह के नबी ने कह दिया कि वुजू करो, 2 रकात नमाज पढ़ो और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करो, अल्लाह तबारक व
ताला तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा। इसी तरह से हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु, मेरे इस्लामी भाइयों, ये वो सहाबी हैं कि जिन्होंने बचपन से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की है, खादिमे रसूल हैं। उनकी वालिदा मोहतरमा उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाहु अन्हा ने प्यारे नबी से दरखास्त की, ए अल्लाह के नबी, मेरे बेटे अनस के लिए दुआ कर दीजिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अक्सिर मालहू व वलदहू व अतिल उमरहू। अल्लाह के नबी ने दुआ की, ए अल्लाह, अनस इब्न मालिक के माल में बरकत दे दे, इनकी औलाद में बरकत दे दे, इनकी उम्र में बरकत दे दे। तीन तीन दुआएं अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। अल्लाह तबारक व तआला ने सारी दुआओं को कबूल कर लिया। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से माल में जो बरकत की गई थी, हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु के माल में अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बरकत डाली कि बाद में हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु का शुमार बड़े बड़े तुज्जार और ताजिरों में आने लगा। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु खुद कहते हैं कि जो दूसरे तुज्जार थे, उनके बागीचों में, उनके बाग में अंगूर की फसलें साल में एक मरतबा आया करती थी, लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का नतीजा था कि मेरे बाग में साल में दो दो मरतबा जो है अंगूर की फसलें आया करती थी। और जहां तक औलाद की बात है, अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे नबी की दुआ की वजह से इनकी औलाद में इतनी बरकत दी कि हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने आखिरी अय्याम में, अपनी आखिरी उम्र में कहते हैं कि मैंने अपनी औलाद में 106 बच्चों को देख लिया। 106 बच्चे, यानी बेटे बेटियां, पोते पोतियां, परपोते परपोतियां, नवासा नवासियां, परनवासी परनवासियां, इस तरह से जो है 106 औलाद को जो है अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से मैंने देख लिए। और जहां तक उमर की बात है, हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने 103 साल की उम्र पाई। और सहाबा किराम में जो सबसे आखिर में इंतकाल करने वाले सहाबा हैं, इनमें हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु का शुमार आता है। तो मेरे इस्लामी भाइयों, कुतुब अहादीस में ऐसे दसियों वाक़यात हैं कि जहां सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अल्लाह के नबी से दरखास्त की दुआ करने की, अल्लाह के नबी ने दुआ की। कहीं अल्लाह के नबी ने सहाबा को खुद कहा कि तुम दुआ करो, उन्होंने दुआएं की, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआओं को कबूल किया। इसी तरह से अल्लाह के नबी के बाद के अदवार में अगर हम देखते हैं, अमीरुल मुमिनीन हजरत मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु के अहद में दिमश्क में कहत साली पड़ गई थी, बारिश नहीं हो रही थी, हर तरफ खुश्की ही खुश्की थी, लोग पानी की वजह से जो है बहुत ज्यादा परेशान थे। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु मिंबर पर चढ़ते हैं और जो है लोगों को जमा करते हैं। इसके बाद यजीद बिन असवद अल जुर्शी नामी शख्स को जो है ऐलान करके बुलाते हैं कि यजीद बिन असवद अल जुर्शी जहां भी हो वो मिंबर के पास आ जाएं। यजीद बिन असवद अल जुर्शी ये कौन है? ताबईन है, बड़े नेक थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे। वो आते हैं, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु उनसे कहते हैं, आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए और कहत साली के खात्मे का अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल कीजिए। वो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं। रावी हदीस कहते हैं, इधर अभी इज्तिमा खत्म नहीं हुआ, मजलिस खत्म नहीं हुई, आसमान में बादल मंडलाने लगे और अभी हम अपने अपने घरों में पहुंचे नहीं कि आसमान से बारिश होने लगी और हम कपड़ों में गीले कपड़े लेकर के अपने घरों में दाखिल हुए। तो मेरे इस्लामी भाइयों, दुआएं अल्लाह तबारक व तआला कबूल करता है। बेशुमार वाकयात हैं मेरे इस्लामी भाइयों, वो सारे वाकयात आप हजरात के सामने पेश नहीं किए जा सकते। एक वाकया और बताता चलूं, ये वाकया एक माँ की दुआ का वाकया है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब पैदा हुए, यतीमी की हालत में पैदा हुए, उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था। उनकी वालिदा मोहतरमा ने ही उनकी परवरिश की, उनको संभाला, उनको अच्छी से रखा और फिर जब ये छोटे से थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके ऊपर एक आजमाइश ये डाली कि इनकी आंखों की बीनाई इनसे छीन ली। माँ ने जब देखा तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। एक तो शौहर के जाने का सदमा उनके ऊपर था और फिर दूसरा ये छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा, ये अभी
जो है दूध पी रहा है और इसकी आंखों की रोशनी चली गई, वो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करती हैं, खूब गड़गड़ाती हैं, एक दिन दुआ करते करते सो जाती हैं। ख्वाब में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आते हैं और बशारत देते हैं कि ऐ खातून, तुम्हारा बेटा जो है ये देखने लगा है। वो उनकी बूढ़ी माँ जब उठ करके देखती हैं तो उनका बेटा देखने लगता है। मेरे इस्लामी भाइयों, कैसी माएँ थी ये, अल्लाह से इनका ताल्लुक कितना मजबूत था। अपनी जिंदगी की उलझनों को अल्लाह से राब्ता करके कैसे वो हल कर लिया करती थी। यही बच्चा आगे चलकर अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस बना और इमाम बुखारी की शक्ल में, इमाम बुखारी के नाम से मशहूर होकर इल्म हदीस की वो खिदमत अंजाम दी कि रहती दुनिया तक लोग इसको फरामोश नहीं कर सकते। दुआएं कबूल होती हैं मेरे इस्लामी भाइयों। मौजूदा जमाने में हजरत डॉक्टर अब्दुल रहमान अस्सुदैस जो खाना काबा के इमाम हैं और फिल वक्त जो है ये सेक्रेटरी हैं, नाजिम हैं, ये एक तकरीर में एक वाकया जिक्र करते हैं कि एक शरीर बच्चा था जो बहुत ज्यादा शरारतें किया करता था। उसकी शरारत से उनकी वालिदा बहुत ज्यादा परेशान हुआ करती थी। एक मर्तबा उस बच्चे ने जो है अपनी मां को इस कदर परेशान किया कि उनकी मां की जुबान से एक जुमला निकला कि चल भाग यहां से, जा, तुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन खाना काबा का इमाम बनाए। ये बात बोलकर अब्दुल रहमान अस्सुदैस साहब जो हैं ये रोने लगते हैं और कहते हैं कि वो बच्चा मैं ही हूं और मां की दुआ की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने आज मुझे इस मकाम पर पहुंचाया है। मैं उन माओं को मैसेज देना चाहता हूं, पैगाम देना चाहता हूं इस वाकये के जरिए से कि जो अपने औलाद की शरारतों पर उन पर लान तान करने लगती हैं, उनको बुरा भला कहने लगती हैं और बद्दुआएं देने लगती हैं, ऐसी माओं को जो है संभल कर रहना चाहिए और गुस्से की हालत में भी अपनी औलाद के हक में अच्छी और बेहतरीन दुआएं करते रहना चाहिए। तो बेशुमार वाकयात हैं मेरे इस्लामी भाइयों, वो सारे के सारे वाकयात आप हजरात के सामने पेश नहीं किए जा सकते। लिहाजा हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला के साथ हुस्ने ज़न रखना चाहिए और यकीन के साथ, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ गिरिया वजारी करते हुए, कबूलियत दुआ के शराइत को मलहूज़ खातिर रखते हुए हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करना चाहिए। और इस हदीस को भी याद रखना चाहिए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदा मोमिन जब अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता है, उसकी दुआ को अल्लाह तबारक व तआला रद्द नहीं करता। बस उसकी दुआ में गुनाह का सवाल ना हो, ताल्लुकात को तोड़ने का मुतालबा ना हो। तीन चीजों में से एक चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जरूर अता करेगा। जो चीज वो मांग रहा है वो चीज उसे मिल जाएगी। अगर वो नहीं मिलती तो उसके बकदर आने वाली मुसीबत को अल्लाह तबारक व तआला टाल देगा और अगर मुसीबत भी नहीं टलती अल्लाह तबारक व तआला उसकी उस दुआ को उसके लिए ज़ख़ीरा आखिरत बना देगा। एक दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा मोमिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाजिर होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है उसको नेकियों का पहाड़ दिखाएगा कि देखो ये नेकियां तुम दुनियावी जिंदगी में करके आए हो। वो कहेगा ए अल्लाह ये नेकियां मुझे याद नहीं है कि मैंने कब की, कहां की। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा याद करो, तुमने मुझसे मांगा था, तुमने मुझसे सवाल किया था, लेकिन वो चीज मैंने तुम्हें अता नहीं की, आने वाली मुसीबत को तुझसे रोका नहीं, उस दुआ को मैंने ज़ख़ीरा आखिरत बना लिया और इसकी मैं परवरिश करता रहा। वो कहेगा काश दुनियावी जिंदगी में मेरी एक भी दुआ कबूल ना होती, एक भी दुआ कबूल ना होती और आज जो है नेकियों का एक बड़ा पहाड़ मेरे सामने नजर आ रहा होता। तो मेरे इस्लामी भाइयों, हमें मजबूत ईमान वाला बनना चाहिए। दुआ की कबूलियत के असरात अगर हमें अपनी जिंदगी में नजर नहीं आ रहे हैं तो हमें अपने अमल की तरफ तवज्जो देना चाहिए और ये यकीन रखना चाहिए कि जरूर इस दुआ के बदले अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी कोई मुसीबत को रोक रहा है या इसको हमारे और आपके लिए ज़ख़ीरा आखिरत बना रहा है। हमें मायूस नहीं होना चाहिए, उल्टी सीधे ऊल जलूल बातें नहीं करना चाहिए। तो यही पैगाम था। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है
الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ الہ العالمین ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں جان بوجھ کر گناہ کیے، انجانے میں ہم سے گناہ کیے ہوئے، پروردگارہ تیری ذات گناہوں کو معاف کرنے والی ہے، ہمارے تمام کے تمام گناہوں کو تو معاف کر دے۔ الہ العالمین ہم نے اپنی زندگی میں جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں تو ان کو شرف قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں جو قرض دار ہیں، مقروض ہیں، الہ العالمین ان کے قرض کو آسانی کے ساتھ ادا کرنے کے اسباب بنا دے۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کسی کا باپ، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیوی، الہ العالمین یہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ الہ العالمین تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کی نیکیوں کو قبول کر لے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا کر انہیں اپنی جنت میں داخل فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو بیمار ہیں، جو حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، جن کو بڑی بڑی بیماریوں نے اپنے شکنجے میں لے لیا ہے، خصوصاً ہماری ہی جماعت کے ایک بھائی ہیں جناب سلیم صاحب، ان کی بھتیجی جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ بیمار ہیں، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ پروردگارہ جو بھی بیمار ہیں ان تمام بیماروں کو تو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو زندگی کے فتنے سے، موت کے فتنے سے، دجال کے فتنے سے، یاجوج ماجوج کے فتنے سے، ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔